نیوز بلیٹن کے آغاز میں ہم کو بتائیں کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 دنوں کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں جمعہ 24 اکتوبر تک ہر قسم کے احتجاج، جلسے، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی بڑھا دی گئی۔ 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر پابندی عائد۔ لاؤڈ سپیکر صرف اذان و جمعہ کے خطبہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر مکمل پابندی۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ محکمہ داخلہ نے جمعہ 24 اکتوبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 دنوں کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں جمعہ 24 اکتوبر تک ہر قسم کے احتجاج، جلسے، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی بڑھا دی گئی۔ 4 یا اس سے زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ غزہ جنگ بندی کے لیے پاکستانی کلیدی کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں نئی گرمجوشی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جہانیہ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا، ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم، یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور افواج پاکستان کی دلیرانہ اور جو جری جوان افسر ہیں اور ایئر فورس ہو ہماری، چاہے وہ بری افواج ہوں، چاہے ہمارے وہ بحری افواج ہوں، ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سب مل کر وفاق میں جو خدمات ملک کی، پاکستان کی انجام دے رہے ہیں، وہ ایک نتیجہ ہے ایک محنت کا، امانت کا، دیانت کا اور خلوص دل کے ساتھ شبانہ روز کام کرنے کا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خانوال احمد MNA محمد خان ڈاہا کے والد کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مرحوم حاجی عرفان احمد خان ڈاہا مسلم لیگ نون کے سرگرم کارکن اور ہمارے دیرینہ ساتھی تھے۔ پارٹی کے لیے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ مرحوم حاجی عرفان احمد خان ڈایا نے جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ کے پرچم کو ہر مشکل وقت میں مضبوطی سے تھامے رکھا۔ عوام اور پارٹی کے لیے ان کے خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر مملکت عبدالرحمان کانچو، معاون خصوصی طلع برکی اور اسپیکر اسمبلی ملک احمد خان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ارکان صوبائی اسمبلی رانا محمد سلیم حنیف، چودھری عثمان فضل، سابق رکن اسمبلی عبدالغفار ڈوگر، زہیب احمد خان ڈایا، میاں اکرام اللہ کومبو بھی موجود تھے۔ 18 اکتوبر 2007 وہ تکلیف دہ اور المناک دن جب کراچی میں جمہوری قوتوں کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قافلے پر کارساز کے مقام پر حملہ کیا گیا۔ 150 سے زیادہ کارکن شہید ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سانحہ کارساز کی یاد میں ملتان، بہاولنگر، لیا سمیت مختلف شہروں میں تقریبات منعقد کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی یاد میں شمع بھی روشن کی گئی۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सानिया कारसाज के हवाले से तकरीबात का इनेकाद। मुल्तान में पीपल्स लॉयर्स फोरम डिवीजन और सिटी तंजीम ने सानिया कारसाज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्तान सिटी तंजीम की जानिब से पीपल्स सेक्रेटेरिएट में शमें रोशन की गईं। शुरका ने सानिया कारसाज के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। ये सानिया को बीते हुए आज 18 साल हो गए हैं। जहां हमारे रंजो गम दुख के जख्म ताज़े हैं, वहां हमारा अज़म भी वही है जो कि उस वक्त कारकुनों का था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में आज हम हमारी क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनके साहबजादे कर रहे हैं, लेकिन हम उसी जज्बे के साथ, उसी जदोजहद के साथ जमहूरियत के मिशन को पूरा करने के लिए, जो कि नामुकम्मल मिशन रह गया था मोहतरमा की शहादत के बाद, उसे मुकम्मल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल ये शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका इनेकाद करती है और ये तजदीद अहद भी है कि आइंदा मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगा। आज तजदीद अहद का दिन है और इंशाअल्लाह हम अहद करते हैं कि जो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादतें दी इस मुल्क के लिए, जो उनका मिशन था, इंशाअल्लाह वो मिशन, अधूरा मिशन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, आसिफ ज़रदारी की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह उस मिशन को मुकम्मल भी करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम बहावल नगर में भी सानिया कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। कारकुनों और ओहदेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिलाई सदर मोहम्मद सलीम का कहना था कि पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज को कभी नहीं भूल सकती। तमाम पाकिस्तान कारसाज के जगह पर बीबी का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था कि उस वक्त ये अजीम बहुत बड़ा सानिया पेश आया, जिसमें 185 के करीब जो पार्टी वर्कर है वो शहीद हुए और तकरीबन 350 के करीब शदीद जख्मी हुए थे। और उस वक्त हर तरफ एक क़यामत सुगरा का मंजर था। तो हम उस वक्त मौजूद थे लेकिन आफरीन है उस कायद को, उस बीबी शहीद को, कि उन्होंने इतने बड़े साने के बावजूद दूसरे दिन वो तमाम जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल में मौजूद थी, तमाम फौतशुदगान के घरों में फातिहा खानी के लिए मौजूद थी। सानिया कारसाज के हवाले से दुआया तकरीबात के इख्तिताम पर शोहदा के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरा टीम के हमरा सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। नाज़रीन, सोने के निर्ख एक साल में दुगना हो गए। शायद सोने में हीरे मोती भी जुड़ गए हैं, जो इसकी कीमत मुसलसल और बेतहाशा बढ़ती ही जा रही है। तमाम इख्तिताम हफ्ता कीमत में कदरे कमी देखी गई। 24 घंटों में सोना 8,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात सोना 4,64,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,25,300 रुपए फी तोला रिकॉर्ड। 24 कैरात सोना 39,800 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा, जबकि 22 कैरात सोना 36,500 रुपए फी ग्राम हो गया। एक रोज कबल सोने की फी तोला कीमत में 24 घंटे का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया था, जब 1 लाख फी तोला कीमत 18,000 रुपए बढ़ गई। सोना ही नहीं, आटा भी लगता है सोने चांदी की तरह आवाम की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। गंदम का सरकारी निर्ख मुकर्रर करने के बावजूद मंडियों में इस पर अमल नहीं हो पा रहा और गंदम के साथ आटे की कीमत भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। महंगाई ने आम शहरियों के साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। मुख्तलिफ शहरों में आटा एक हफ्ते में 1,000 रुपए फी मन महंगा हो गया। 15 किलो आटे का थैला 1,200 से बढ़कर 1,600 रुपए का फरोख्त होने लगा। गरीब तबके की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। जलालपुर पीरवाला से आटे दाल का भाव बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वक़ास सदीक। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। महंगाई से जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में आटा 1,000 रुपए फी मन महंगा हो गया, जिसने सैलाब मुतासरीन को दोहरी मुश्किल में डाल दिया। रास्तों, मकानों और कारोबार की बहाली के मुंतजिर सैलाब मुतासरीन अब महंगाई का भी सामना कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन कहते हैं पहले सैलाब से उनका सब कुछ लुट गया, अब महंगाई के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। एक हफ्ता पहले 15 किलो आटे का बैग 1,200 रुपए का मिल रहा था, जो अब बढ़कर 1,600 रुपए का हो गया है। आटा महंगा होने से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। पहले हम लोग लेके जाते थे 1,100 रुपए में, अभी 1,600 रुपए में दे रहे हैं। बात भी नहीं सुनते हैं और इतने पानी इतना आया हुआ है, डूबे हुए हैं, कुछ खाने को नहीं है। जो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं पैसे वो भी इतना ज्यादा महंगाई में देते हैं। अभी समझ नहीं आ रही हम लोग कहाँ जाए। हम यही कहेंगे महंगाई को जितना भी हो सके मरियम नवाज से अपील करते हैं महंगाई को कंट्रोल करें।
सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों को फौरी कंट्रोल किया जाए ताकि उनका गुजर बसर कुछ तो आसान हो सके। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। अभी सर्दी ठीक से आई नहीं और मुर्गी की बजाय अंडे को पर लग गए। उच्च शरीफ में फी पेटी अंडों की कीमत 700 रुपए बढ़ा दी गई। फी दर्जन अंडे 300 से बढ़कर 360 रुपए के हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी सर्दी ठीक से आई नहीं और मुर्गी के बजाय अंडे को पर लग गए। उच्च शरीफ में फी पेटी अंडों की कीमत 700 रुपए बढ़ा दी गई। फी दर्जन अंडे 300 से बढ़कर 360 रुपए के हो गए हैं। सर्द मौसम के आगाज में ही फार्मी अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 700 रुपए महंगी हो गई। परचून में भी अंडा 25 रुपए से महंगा होकर 30 रुपए का हो गया। अशिया खुर्दनोश की आए रोज बढ़ती कीमतों से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कल अंडा रेट है 25 रुपए, आज ये रेट है 30 रुपए। सब्जी मांगी, गोश्त मांगा, फ्रूट मांगे, हर शय मांगी, दाल मांगी, चावल मांगा। सब मजदूर बंदे थे कितना वनूं 700-800 तरीक कमावन वाले थे, कितना बुरा करूँ। कल 25 रुपए रेट है अंडे का, कल घिन गए थे, आज घिनने से बाले कौन इन नाश्ता कर विंदे से हुण अंडे का रेट ही महंगा थी गया। शहरियों का कहना था कि 700-800 दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर अपने घर को कैसे चलाए। बिजली, गैस, आटा, चीनी, दालें, चावल समेत हर चीज की कीमतों में इजाफा हो गया है। बच्चों को सुबह सवेरे स्कूल जाने से पहले अंडा बनाकर देते थे, अब उसकी कीमत में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई महंगाई से हर शख्स परेशान है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हुसैन, रोही, उच्चर। और नाज़रीन, सर्दी के दस्तक देते ही खुश्क लकड़ी की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। नौशेरा जदीद में फीमन खुश्क लकड़ी 1000 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी है। लकड़ी की कीमत बढ़ने से शहरी शदीद परेशान है। लकड़ी की कीमत बढ़ने से शहरी शदीद परेशान है। सर्दी के दस्तक देते ही खुश्क लकड़ी की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। नौशहरा जदीद में फी मन खुश्क लकड़ी 1000 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी। लकड़ी की कीमत बढ़ने से शहरी शदीद परेशान है। सर्दी की आमद के साथ ही खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। नौशेरा जदीद में खुश्क लकड़ी 800 से 1000 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि लकड़ी खरीदना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। गरीब तबका सर्दियों के आगाज में ही ईंधन के बहरान का शिकार है। शहरी हलकों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लकड़ी की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अगर इस हवाले से फौरी इकदाम न किए गए तो सर्दी बढ़ने पर मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। देहाती इलाका इतना के लकण नायाब थी गए, जड़ियां छिटियां हन कपास हलाओ सिलाब दी नजर थी गए हुंदी वजह कन असीं 800 तो 1000 रुपए मौसम दी तब्दीली नाल हुण लकण मण मिलदे पे है। इतना के गैस मिलदे तो लकण को ज्यादा महंगा है। लकड़ी महंगी होने से शहरियों के लिए घरों को गर्म रखने के इंतजामात मुश्किल हो गए हैं। इंतजामिया लकड़ी समेत दीगर ईंधन की कीमतों में कमी के लिए फौरी अमली इकदाम करे। कैमरामैन मलिक जुबैर के साथ मलिक हबीब लांग, रोही न्यूज, नौशहरा जदीद। मुल्तान में निश्ता रोड पर इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन, तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। चिश्तियां और बस्ती मलूक में भी पेरा फोर्स ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जबकि लोधरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजिरों ने एहतजाज किया। रोही ने आवाज उठाई तो मुल्तान की इंतजामिया हरकत में आई। निश्ता रोड पर तजावुजात को क्लियर कर दिया गया। फूड स्टॉल्स, टी स्टॉल्स, फल फरोशों को हटा दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि अब किसी का सामान जुर्माना करके वापस नहीं होगा और न ही कोई दबाव कबूल किया जाएगा। ऑपरेशन कर रहे हैं वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, मेहरबानी करें ये तजावुजात ना करें इनकी और ना मंडी लगाएं। मलूक में पेरा फोर्स का शुजाआबाद रोड, अड्डा लाड़ और कस्बा मरल में ऑपरेशन। गैर कानूनी शहद, सरेडियां और फुटपाथों पर रखा सामान हटा दिया गया। एसटीओ पेरा फोर्स राना मोहम्मद अफसल ने महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने पर मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने भी किए। चिश्तिया में भी असिस्टेंट कमिश्नर साहिल रसूल की निगरानी में पेरा फोर्स ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और तख्ता तजावुजात खत्म करके सड़कें और रास्ते कुशादा कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि लोगों को मुतनबे कर दिया है कि तजावुजात खुद हटाएं वरना पेरा फोर्स कार्रवाई करेगी। जी, तहसील चिश्तिया में हमारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव ये दोबारा स्टार्ट है। पहले भी ये इनिशिएटिव जो सीएम का है उसके मुताबिक हमने जो तहसील के अंदर जो परमानेंट इंक्रोचमेंट थी उसको रिमूव किया और इसी तरह टेम्परेरी जो इंक्रोचमेंट है उस पर भी एक्शन लिया। ये दोबारा ड्राइव स्टार्ट है।
लोधरा में तजावजात और रेडियां खत्म कराने के खिलाफ ताजरों का कहना है कि बाजार में कोई जगह मुख्तस कर दी जाए जहां रेडियां लगाई जा सके, क्योंकि ग्राहक दूसरी जगह लगी रेडी का रुख नहीं कर रहे। किताब से मोहब्बत क्या कम हुई, कुतुब खाने भी इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गए, लाइब्रेरीज में खाक और धूल जम गई। ऐसा ही कुछ हाल डीजी खान के सिटी पार्क में मौजूद पब्लिक लाइब्रेरी का है, जहां किताबों पर मिट्टी जमी जबकि दीवारों का प्लस्तर तक उखड़ गया है। डीजी खान में इल्म का चिराग बुझने लगा। सिटी पार्क में वाक़ पब्लिक लाइब्रेरी जो कभी इल्म और मुताला का मरकज थी, आज वीरानी का मंजर पेश कर रही है। इंतजामिया की गफलत के बायस लाइब्रेरी की इमारत भी खस्ता हाली का शिकार हो गई। सफाई न होने से किताबों पर मिट्टी की मोटी तह जम चुकी है। किताब दोस्त शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर लाइब्रेरी की इमारत की मरम्मत और सफाई कराए ताकि मुताले का कल्चर दोबारा से फरोग पा सके। जब हम इनकी किताबें पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर धूल मिट्टी जो है ना किताबों पर जमती जा रही है, क्योंकि स्टाफ की इसमें कमी है और जो मौजूदा स्टाफ है वो हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करते हैं। बाकी जो बिल्डिंग है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है, उसका प्लस्तर जो उतर रहा है, तो हम इंतज़ामिया से और उनसे भी अच्छी तवक्को करते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दें। कभी इल्म की खुशबू से महकती ये इमारत अब जुबू हाली की तस्वीर बन चुकी है। शहरियों को उम्मीद है कि हुकाम नोटिस लेकर उसे दोबारा जिंदा करेंगे। कैमरामैन उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डेरा गाजी खान। गुज़श्ता माह आने वाले तबाहकुन सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाके जलालपुर पीरवाला की कई बस्तियों के मकीन तहाल इमदाद के मुंतसिर हैं, जबकि मुजफ्फरगढ़, मिंचनाबाद और मुबारकपुर में मुतासरीन में मुख्तलिफ फलाही इदारों की तरफ से राशन, कपड़े और बिस्तर तकसीम किए गए। पीरवाला की सैलाब मुतासरीन बहाली के मुंतजिर। मोजादुरापुर, शर्की बस्ती, हाफिज सादिक बस्ती, कोटला दाया में मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कई रोज से राशन नहीं पहुंचा, बहाली सर्विस से भी महरूम है। शदीद मुश्किलात से दो चार मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी इमदाद फराहमी का मुतालबा किया है। उधर मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। अल-फलाह फाउंडेशन की तरफ से सुनकी बंद, दुआबा, मुरादाबाद और दीगर इलाकों में 300 मुतासरा खानदानों में राशन, गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए गए। मुबारकपुर के सैलाब मुतासरा शहरियों की बहाली के लिए फलाही इदारों की तरफ से हायर सेकेंडरी स्कूल में कैंप लगाया गया, जिसमें मुतासरा खानदानों में राशन और घरेलू इस्तेमाल के बर्तन तकसीम किए गए। मंचनाबाद के सैलाब ज़दगान के लिए मौलाना तारक जमील फाउंडेशन और अल ईसार ग्रुप की जानिब से बहरा मुक्का अठाड़ में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 300 से ज्यादा मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और अदवियात फराम की गई। भावलपुर में जनाना जुबली अस्पताल की अबतर हालत। अस्पताल में ना अमला है ना ही दवाइयाँ। अस्पताल का कंट्रोल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हवाले स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का स्टाफ वापस बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया गया। तिबी अमला ना होने के बायस जुबली अस्पताल में ज्यादातर सर्विसेज मुअत्तल हो गए। दो महकमों के दरमियान शटल कॉक बना जनाना जुबली अस्पताल बहावलपुर जुजवी तौर पर बंद हो गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को कंट्रोल सौंपने के बावजूद अस्पताल का निजाम ठप होकर रह गया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का स्टाफ बहावल विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया गया। महकमाना ट्रांसफर के बायस अस्पताल का बजट फ्रीज, जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से नया बजट ताहाल मंजूर न हो सका। तिब्बी अमला न होने के बायस अस्पताल में बेशतर सर्विसेज मुअत्तल हो गई। सुबह से आके बैठे हम आम देखें, आवाम को देख लें, सुबह से आके बैठे इंतजार कर रहे हैं। जो भी पेशेंट अंदर जाता है वापस टाइम से नहीं आता। ना ऑनलाइन का कोई सिस्टम है, अगर इंजेक्शन लगवाने आए हैं किसी को तो ऑनलाइन नहीं हो रहे इंजेक्शन। ठीक है, मामला पहले से काफी बेकार हो चुके हैं। जो साबका जो हैसियत थी, यहाँ पर ऑपरेशन भी होते थे, डॉक्टर्स भी होती थी, एनेस्थीसिया वाले भी थे, सब कुछ थे, उसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर इतनी सहूलतें थी शहरियों को, जो शहर के इधर रहने वाले थे वो आकर यहाँ पर बड़ा फायदा होता था उनको और बहुत सहूलतें थी। अस्पताल जराये के मुताबिक रोजाना 5 से 10 गायनी सी सेक्शन सर्जरीज होती थीं, जो ऑपरेशन थिएटर बंद होने से अब नहीं हो रही। मरीजों को वापस भेजा जाने लगा है। बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने वाले और ओपीडी के लिए आए मरीज भी खुआर होकर रह गए। ऑपरेशन के लिए बहावल विक्टोरिया अस्पताल रेफर किए जाने वाले मरीजों को कई माह बाद का टाइम दिया जा रहा है। ऑपरेट बंद कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा जल्दी जो हो सके यहाँ पे ऑपरेट बहाल किए जाएं, ताकि यहाँ लोग मरीज परेशान ना हो। बेचारों को इधर से उधर रेफर किया जा रहा है, सिविल रेफर किया जा रहा है, विक्टोरिया रेफर किया जा रहा है। लिहाजा यहाँ पे ऑपरेट चालू किए जाए, इसको पुरानी हैसियत पे लेके आया जाए ताकि उसका क्या नाम है यहाँ पे काम हो सके। सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर आमिर बशीर मलिक का अपने मौक़िफ़ में कहना था कि अस्पताल के लिए नए स्टाफ की भर्ती और बजट की मंजूरी में वक्त दरकार है। जरूरी अमला और अद्वियात अस्पताल पहुंचा दी गई हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में तीसरी पाकिस्तान नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर्स और स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत।
माहौल दोस्त गाड़ियों की अफादियत और जिद्दत पर मुख्तलिफ सेशंस भी मुनक्किद किए गए। मुंतज़मिन का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद माहौल दोस्त गाड़ियों को फरोग देना है। मुल्तान में गुज़िश्ता साल स्मोक पूरे तरीके से छाई रही, इसीलिए शहर में स्मोक फ्री व्हीकल से मुतल्लिक आगाही देने के लिए तीसरी पाकिस्तान नेशनल इलेक्ट्रिक स्मोक फ्री व्हीकल्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुंतज़िमीन के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद धुआं छोड़ती गाड़ियों से छुटकारा, इलेक्ट्रिक और माहौल दोस्त गाड़ियों को फरोग देना था। हम सब चाहते हैं कि इस धुएं से जान छूटे, हम एक बगैर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हैं जिसका ना एक्सपेंस है ना उसका जो है वो कोई धुआं है। इससे ज्यादा सस्ती आपको वो गाड़ी पड़ती है, मेंटेनेंस के हवाले से भी, कॉस्ट के हवाले से भी। नेशनल ग्रीन इलेक्ट्रिक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से इंजीनियर्स, बैटरी साज कंपनियां, ईवी बाइक्स, इंपोर्टर्स और माहिरीन समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन का कहना था कि बढ़ती आलूदगी का हल तमाम वसाइल को ग्रीन इंजन की तरफ मुंतकिल करने से ही मुमकिन होगा। बीमारियों को एक जड़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इलेक्ट्रिक आ गई है। अब इंशाल्लाह लोगों का जो है रुझान भी आ रहा है और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा ताकि लोग जो है ना पुरसकून रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। पेट्रोल भी महंगे हैं आजकल, इलेक्ट्रिक में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा इंशाल्लाह इसका जो है ना अच्छा इंप्रेस पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तमाम ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेक होल्डर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों से इस बात का अयादा किया गया कि तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अलग अलग चार्जिंग सॉकेट्स लगाने की बजाय एक जैसी चार्जिंग सॉकेट्स लगाई जाएंगी ताकि कस्टमर को चार्जिंग में आसानी हो। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान, शेख रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्कूल मील प्रोग्राम के तहत प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को दूध और बिस्किट फ्राहम करने का आगाज कर दिया गया है। हफ्ते में 3 दिन बच्चों को दूध के पैकेट जबकि एक दिन बिस्किट दिए जाएंगे। काजी खान में चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने स्कूल नंबर 3 रेलवे कॉलोनी और बॉयज प्राइमरी स्कूल में प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया और बच्चों में दूध के पैकेट्स तकसीम किए। डिप्टी इंफॉर्मेशन ऑफिसर जुनैद जतोई कहते हैं कि पहले फेज में 1300 प्राइमरी स्कूलों के 1,90,000 बच्चों को दूध फराहम किया गया। दूसरे फेज में जल्द दूध के साथ बच्चों को बिस्किट भी दिए जाएंगे। जो पहला फेज था जो छुट्टियों से पहले, उसमें तकरीबन जिला डेरा गाजी खान के 1300 के करीब प्राइमरी स्कूल थे जिसमें 1,90,000 बच्चों को उस पहले फेज में तकरीबन 1,54,00,000 के करीब जो दूध के डब्बे थे वो तकसीम किए गए थे। दूसरे फेज में ये भी शामिल किया गया है कि हर तीसरे दिन जो ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे ताकि ज़िला डेरा गाजी खान के जो मेल न्यूट्रिशन बच्चे हैं उनकी ग़िज़ाइयत और सेहत के से मुतालिक जो भी कमी है वो दूर की जा सके। मियांवाली में भी स्कूल मील प्रोग्राम के तहत प्राइमरी स्कूलों के तलबा और तालिबात को दूध और बिस्किट फराहमी शुरू कर दी गई। 663 स्कूलों के 75,600 बच्चों को सोमवार, मंगल और बुध के रोज दूध जबकि जुमेरात के रोज बिस्किट फराहम किए जा रहे हैं। CEO एजुकेशन मियांवाली खालिद महमूद खान का कहना है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ प्राइमरी स्कूलों को शामिल किया गया है। मियांवाली में 75,600 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको डेली बेसिस पे ये प्रोवाइड किया जा रहा है। सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन दूध प्रोवाइड किया जाता है और जुमेरात के दिन बिस्किट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो मील प्रोग्राम है ये बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे, यानी इनके जो इंटीग्रेट्स हैं बच्चों की ग़िज़ाई अज्जा दूध में, बिस्किट में बहुत अच्छे और बच्चों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। CEO कहते हैं कि हर 15 दिन बाद दूध और बिस्किट की सप्लाई मंगवाई जाती है ताकि स्टॉक भी मौजूद रहे और ये चीजें ज्यादा अरसा पड़े रहने से एक्सपायर भी ना हो। बताएं रहीम यार खान के साइंसदान बच्चे कम उम्री में ही बेहतरीन साइंसी प्रोजेक्ट्स बनाने लगे। गवर्नमेंट कॉलोनी हाई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का इनाकाद, नुमाइश में साफ पानी के निजाम, ऑटो सेंसर गाड़ी समेत 35 प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं। रहीम यार खान जहां जहानत, तख्लीक और साइंसी सोच ने एक साथ जलवा दिखाया। गवर्नमेंट कॉलोनी हाई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन, जहां किताबों के इल्म को बच्चों ने अमली मॉडल्स में ढालकर सबको हैरान कर दिया। गवर्नमेंट कॉलोनी हाई स्कूल में मुनाकिदा साइंस एग्जीबिशन में 6ठी से 10वीं जमात तक के तलबा ने हिस्सा लिया और 35 से जायद प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। पीने के साफ पानी के निजाम और दिन और रात के अमल की वजाहत, हाइड्रो प्लांट, स्पेस रॉकेट, बॉयलर और आतिश फिशान जैसे मॉडल्स ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। ये प्यूरीफायर पानी को साफ नहीं करता बल्कि पानी का TDS और टर्बिडिटी भी शो करता है। ये जो हमारे पास प्यूरीफायर है ये बताता है कि डिस्प्ले के ऊपर कि पानी पीने के लायक है या नहीं। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, ये इसका सेंसर ऑन हो गया और ये आगे से डिटेक्ट करती है और ये अपना चेंज करती है।
प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलोनी हाई स्कूल शाहिद सलीम का कहना था कि इनका मकसद तलबा में साइंसी शऊर और अमली तरबियत देना है ताकि वो आने वाले कल के मौजूद बन सके। तो ये जितने मॉडल्स आई थिंक 30-35 हैं इस वक्त, ये मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं अपने टीचर्स के साथ मिलके। और यहाँ मैं गुड न्यूज़ ये भी देता चलूँ कि इस वक्त तक मेरे पास जो रिजल्ट आया है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में स्टीम कंपटीशन में मेरा ही स्कूल विन कर चुका है। साइंस एग्जीबिशन ने न सिर्फ बच्चों के एतमाद को बढ़ाया बल्कि ये साबित किया कि अगर मौका मिले तो छोटी उम्र के जहन में भी बड़ी इजादात का ख्वाब देख सकते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आसिम सिद्दीक, रूही, रहीम यार खान।